everyone and welcome back to my YouTube channel Healing Neutrophil. I am Dr. Humera and I am a first year dermatology resident based in India. So today's video is going to be something about, it's going to be a motivational one because so many of you guys were requesting me in my DMs and otherwise also that they are little stressed about the exam that is going to happen in another 2 or 3 days, that is NEET PG 2022 examination, and a lot of chaos is going around that it's not going to be postponed anymore, and whatever the date, that is 21st of May is there, it's going to happen on that day only. And now because of this, many students are really sad, really depressed, because they think that if they would have got more time they could have utilized it more efficiently and अच्छा कर सकते थे वो बहुत ज़्यादा. But now see, these things are not in our hands and you just need to be focused at this point of time, and you need to utilize your 2 to 3 days very efficiently, because these 2-3 days can decide your entire future and your branch, your dream. So instead of stressing about that, you have to go and you have to get your dream and achieve that. So yes, I just wanted to say that what you need to do at this point of time is do MCQs, use your 20th notebook very efficiently. जो भी तुमने कहीं भी important points jot down किए हैं, just do it, revise it. Revision is the key. See, there are 2 types of students, okay. The first student, okay, जो अभी regret कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार और postpone हो जाता है एग्जाम तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, and they would have closed their books, and अब उनको लग रहा है कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, and they would be sleeping or doing something, और कोई vacation पे चले गए हैं and they are not even stressing about it. दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस कर करके उसको जो अभी हमारे हाथ में टाइम है उसको गवा देते हैं. एंड एक थर्ड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग अबाउट इट दे आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम एंड थिंकिंग अबाउट द ब्रॉडर एस्पेक्ट कि जो भी हुआ है हैज़ हैपेंड टू एवरीबडी, एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग दे शुड यूटिलाइज इट, रिवाइज, do MCQs, do revision of GTs, pearls. So there are a various category of students. So it is you who is going to decide which category you want to be and what you want to be, okay. Just remember, you are 2 to 3 days away from your dream, your future. The thing that should not be there is the regret. कि you should not regret कि अगर मैं 2-3 दिन या 7 days whatever days मैंने यूटिलाइज़ कर लिए होते तो ये क्वेश्चंस आए थे, आई वुड हैव डन ईजिली, या अगर मैंने रिवाइज़ किया होता, ओ ये तो मैंने पढ़ा था, अगर मैंने ये रिवाइज़ कर लिया होता तो आई वुड हैव डन. Once you enter the examination hall and once you बाहर आओ एग्ज़ाम हॉल के, you should be like मैंने अपना 100% दिया, मैंने सब कुछ पढ़, मतलब जितना मैं कर सकता था किया, मैंने रिवाइज़ किया, सब किया, मुझे जितना टाइम मिला मैंने उसको यूटिलाइज़ किया, और अब मैं बाहर आ रहा हूँ इस सोच के साथ कि अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, वॉट एवर शुड बी माई स्कोर. सी, स्कोर इज़ समथिंग दैट, ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो यू हैव टू स्कोर ग्रेट या 4K, 2K, 5K या 2 डिजिट रैंक ही लानी है तभी यू आर सक्सेसफुल. यू आर सक्सेसफुल विदाउट एनी रिग्रेशन, ठीक है. रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, चाहे कितना भी तुम पढ़ो, कितना भी कुछ करो. अगर सी अ स्टूडेंट हु इज़ गेटिंग अ 6K रैंक, अगर वो उससे सेटिस्फाई है बिकॉज उसे पता था कि हाँ अगर मेरी ये रैंक आई है तो इस बिकॉज मैंने उतने ही एफर्ट्स डाले थे, उतना ही मैंने पढ़ाई की थी, ओके. एक स्टूडेंट है उसके आ रहे हैं 40K रैंक, बट ही इज़ रिग्रेटिंग कि आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर, आई वुड हैव डन बेटर अगर मैंने उसको यूटिलाइज किया. सो दैट रिग्रेट शुड बी नॉट देयर. दैट ट्रस्ट मी गाइज, दैट इज़ द बिगेस्ट एनिमी एंड दैट regret will live with you entire life. So just decide yourself what you want to be. And yes, so one more thing, I have seen many people DMing me that उनका INI-CT एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ है, they are not able to even qualify. Trust me guys, मैंने बहुत सारे students देखे जिन्होंने INI-CT क्वालिफाई भी नहीं किया, बहुत ही ख़राब उनका INI-CT हुआ था, and they have scored so good in their NEET PG examination. ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आई हैव सीन माई ओन पर्सनल फ्रेंड, लाइफ एग्जाम्पल, मतलब मैंने देखा है उनको करते हुए. सो ऐसा नहीं है. सी, द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट. INI-CT में द सीट्स आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड एंड थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है INI-CT में, बट NEET PG इज़ वेरी अचीवेबल आई फील, एंड यू कैन रियली डू वेल इन दैट एग्जामिनेशन. बट बस अपना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. एंड इन 2-3 डेज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, डू पर्ल्स, 20th नोटबुक, जो बेसिक क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, कलरिंग, कैथेटर, साइज़, ये वो जो मतलब रोज़ के बेसिस पे आते हैं, एक्सरे, रेडियो के जो कॉमन एक्सरे, जस्ट गो विजिट दैट.
रिग्रेट नहीं करना, बस उन सबको अच्छे से देखना है, कंपाइल करना है, कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है कि यू कांट डू, यू आर जस्ट बेस्ट इन योर सेल्फ। एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करो एग्ज़ाम हॉल में और अच्छे से। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव अ गुड स्लीप। एक अच्छी स्लीप के साथ जाओ, एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप लेकर जाओ, बिकॉज यू नो आवर माइंड नीड एनर्जी, और माइंड नीड ग्लूकोज, और अगर तुम उसको स्लीप नहीं दोगे, डिप्राइव रखोगे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस इट। सो येस, अच्छे माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ जस्ट गो एंड रॉक द एग्जामिनेशन एंड quickly come back to me and tell me how was your exam. Even if it's not good, just come and tell me, because the only thing matters is the effort and is the time you have given to something that you actually want in your life, and that's all that matters. Okay, and just remember, the one exam cannot decide your life, right? So पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट in for your examination. May you rock, may you come out with flying colors, and I am just waiting for your DMs after the examination and कैसा हुआ. So yes, I'll see you very soon in another video. Till then, goodbye.